Now this is the third step. Third step is that conversion of ores into oxide form. Initially I have told you that now the ores we obtain वो या तो सल्फाइड के फॉर्म में है हमारे पास में या वो कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में है या वो कार्बोनेट के फॉर्म में है। अब इन सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स दोनों को हमने कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड ओर मिलना है। बट ऑक्साइड ओर फॉर्म करने के लिए अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड व्हाट आर दोस? इफ the ore is sulfide, then there is a process which involved known as a roasting, भूनना, right? Roasting, what happens? Heating the ore in the excess of O2. You are heating it in the presence of O2. So what happens? जो सल्फाइड ओर है, जो आपका सल्फाइड ओर है, it converts into oxide. Like you have the CuS, कॉपर सल्फाइड और हमारे पास था। नाउ हमने इसको क्या हीट किया, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इट फॉर्म्स CuO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ वी आर गेटिंग दिस ऑक्साइड ओर। ऑन द अदर हैंड इफ वी हैव द कार्बोनेट ओर लाइक ZnCO3 हमारे पास में है। अब ZnCO3 को भी हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। देन देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व नोन एज अ कैल्सिनेशन। Calcination takes place in the lack of O2 or absence of O2, मीन्स ये जिंक कार्बोनेट को हम सिंपली हीट करेंगे और हीट करने पर ये फॉर्म करेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2. So ultimately what happens? We obtain oxide ore by roasting or the calcination, two processes. रोस्टिंग प्रोसेस या कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू हमने सल्फाइड या कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट कर लिया इन द ऑक्साइड ओर। आवर नेक्स्ट प्रोसेस इज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। आफ्टर गेटिंग द ऑक्साइड ओर, these oxide ores are needed to be reduced, and for this we need several chemicals known as the reducing agents. Reduction of the ore can be done by the using these chemicals like carbon, coke, carbon monoxide or hydrogen known as reducing agents. They are used for this, like copper, lead और iron के लिए हम इनका यूज करते हैं। These are used for reduction of copper, lead and iron. And finally what we get here, we are getting, as we are having the ore copper oxide, तो yes, if it is a copper oxide ore, कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, इट फॉर्म्स Cu प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ इट इज CuO और अगर इसको हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, इट फॉर्म्स Cu प्लस वाटर। सिमिलरली लेड और आयरन के साथ में भी ऐसा होता है। व्हाट अबाउट हियर जिंक? जिंक किसी से रिड्यूस नहीं होता है, जिंक ओनली रिड्यूस विद द कोक। जिंक ऑक्साइड अगर हमारे पास में है, सो सिर्फ जिंक ऑक्साइड कोक से रिड्यूस होता है एंड इट फॉर्म्स जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, सिल्वर ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड, ये बड़े अनस्टेबल से ऑक्साइड होते हैं। दे आर वेरी अनस्टेबल ऑक्साइड्स एंड दे रिड्यूस सिंपल बाय हीटिंग। If you heat them, they easily reduce in the Ag or Hg, silver or mercury, as well as oxygen. What about other? There are many. Those are very highly reactive. Those are highly reactive like sodium, potassium, calcium, magnesium, or you can use here lithium. ठीक है? Lithium, aluminium, they are highly reactive. They have strong bonding with the oxygen, so they easily do not reduce in that. Then what's the required? How can we reduce them? So they can be reduced, mean these all, कौन से है? These all can be reduced by the process known as a electrolysis. Again I am repeating here,
reduction of oxide ore. Oxide ore can be reduced by using reducing agents like carbon monoxide or hydrogen. For this, these metals, copper, lead and iron, they can be used for reducing by this. Here I have shown how copper oxide is reduced by the carbon or by the hydrogen. Same way lead और iron भी ऐसे ही होते हैं. जिंक इनमें से किसी के सबके साथ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कोक के साथ, कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसका रिडक्शन होता है जिंक में 10. व्हाट अबाउट हियर मरकरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड, ये बहुत अनस्टेबल है ऑक्साइड है, ये सिंपली हीट से ही रिड्यूस हो जाते हैं. व्हाट अबाउट हियर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, they are the strong, highly reactive with the oxide, right? Oxide. इनके ऑक्साइड को ब्रेक करना इजी नहीं होता है, so they cannot break by using any chemicals. They are broken into or reduced by the process of electrolysis. What is electrolysis? अच्छा, one more thing I am telling you. Here what we are getting, यहाँ पे जो हमें metals मिले हैं, we can't say they are the 100% pure. They may be pure, 99% may be pure, right? But if we need 100% pure metal, because many places are there जहाँ पे हमें 100% प्योर मेटल का यूज करना पड़ रहा है, देन ये वहाँ पे तो रिएक्शन नहीं करेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो व्हाट हैपेंस, हाउ कैन वी ऑब्टेन द 100% प्योर मेटल, एंड दैट प्रोसेस नोन एज अ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. वो इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही होती है. लेट्स डिस्कस दैट. फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वी नीड अ कंटेनर हियर, राइट? वी नीड अ कंटेनर हियर, और जहाँ पे हम दो इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं. एक इलेक्ट्रोड इम्प्योर मेटल का बना हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रोड जो प्योर मेटल का बना हुआ है. द इलेक्ट्रोड विच इज मेड बाय द इम्प्योर मेटल, लेट्स टेक द कॉपर, राइट? दिस इम्प्योर is connected with the positive terminal of the battery, whereas another electrode is connected with the negative terminal. So one which is connected with the positive terminal known as the anode, and which is connected with the negative known as the cathode, and both of them connected with the battery, that is a direct current, not AC current, DC current, right? There is a liquid known as the electrolyte liquid which is capable to transport the current, right? Transfer the current. So electrolyte, अब electrolyte भी सेम मेटल का ही यूज करेंगे, राइट? अगर हमने ये Cu यूज किया हुआ है, ये प्योर Cu कॉपर यूज किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट भी किसका होगा? CuSO4 होगा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा. नाउ जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, व्हाट हैपेंस, इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है. करंट फ्लो होना शुरू होता है तो सबसे पहले प्रोसेस शुरू होती है एनोड पे. एनोड पे क्या होता है? कॉपर. ये कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हुए यहां से और किसको ट्रांसफर हो गया? इस कैथोड पे चला जाता है. कॉपर यहां से कूदकर लिक्विड में आया और यहां से ये किस पे डिपॉजिट हो गया? कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है. सिमिलर ये प्रोसेस चलती रहती है और लास्ट तक ये सारा कॉपर यहां से निकलकर इस कैथोड पे डिपॉजिट होता रहता है. एंड द इम्प्योरिटीज दे आर डिपॉजिटेड बिलो दिस एनोड, दैट इज व्हाई नोन एज अ एनोड मड. सो फाइनली ये प्रोसेस हुई एनोड पे. कैथोड पे क्या प्रोसेस हो रही है? कैथोड पे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? Cu बना रहा है, जो Cu इस कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है. रिफाइनिंग ऑल्सो कैन बी डन बाय हीटिंग द few ores or the few metals, as the metal is a volatile. If the metal is a volatile like mercury oxide, if we heat them, then what happens? It evaporates and the vapors can be collected there and they can be again converted into the initial form. So this is how कि हमने कैसे ore से different steps को involve करके metal find किया, metallurgy
केमिकल प्रोसेस के थ्रू। कोरिजन ऑफ मेटल्स, दिस वर्ड कोरिजन, आई थिंक ये हमने फर्स्ट चैप्टर जब डिस्कस किया था वहां पे कोरिजन वर्ड आया था। इट मीन्स दैट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन और वाटर। While they react with oxygen or the water, they form their oxide or the hydroxide, और ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मेटल को वीक करने का काम करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। What we have read rusting especially, and in the rusting case what happens, iron reacts with oxygen in the presence of water and form rust or oxide, that is Fe2O3.H2O. This is the iron oxide, and when the iron oxide forms at the surface of the iron, it weakens the iron or article or the metal objects. Similarly, खाली आयरन नहीं है, वो कॉपर भी हो सकता है, उसके ऊपर भी कॉपर ऑक्साइड की कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। सो ये मेटल्स को वीक करने का काम करते हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारा पैसा जो है इन मेटल की चीजों को, आयरन की चीजों को बचाने के लिए हर साल खर्च किया जाता है। बहुत सारी मे बी ब्रिजेस हैं, मे बी रेल ट्रैक्स हैं, इन सब में रस्टिंग होती है, जिनको बचाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, एज आई हैव टोल्ड यू। सो यस, हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस? दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वेरियस मेथड्स। ना जनरली हमने पढ़ा है, पेंटिंग के बारे में पढ़ा हुआ है। देन ग्रीसिंग, after that oiling, applying of paint, applying of grease, applying of the oil, they all prevent of that. Galvanization पढ़ा होगा, it is a coating of zinc on the iron substance. Then tinning is there, coating of tin। बहुत सारे पीने वाले केन्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, जूस पीने वाले टेट्रा पैक्स जैसे आते हैं, और उसकी जो इनर सरफेस होती है, इट इज कोटेड बाय टिन। दैट प्रोसेस नोन एज अ टिनिंग। वन मोर प्रोसेस इज देयर, एलॉइंग। इट इज ऑल्सो अ मेथड टू प्रिवेंट द मेटल्स फ्रॉम द रस्टिंग और कोरिजन। द फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। Alloy, what is? Alloy is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of metals. Maybe two or more than two. In our life, daily life, there are many alloy. Like brass. Brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is alloy of tin and copper. ड्यूरेलामिन, ये एलॉय एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें उसमें रस्टिंग ना हो, लाइट वेट हो, इजीली किसी से रेट ना करें, एंड इट इज मेड फ्रॉम द एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड मैग्नीज। 4 मेटल्स आर देयर, दोज आर यूज्ड फॉर मेकिंग ड्यूरेलामिन। ये सोल्डर हमारी बुक में है, इस बार बोर्ड में क्वेश्चन भी आया था सोल्डर का। सोल्डर मोस्टली यू माइट हैव सीन इफ यू गो थ्रू द ATL labs. So there is a one steel like wire which is used to join two wires known as solder, and it is an alloy of SnNCu, tin और कॉपर का है। ये क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। सिमिलरली अनदर alloy is टंगस्टन, बल्ब में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में, एंड टंगस्टन आयरन और मैग्नीज का बना हुआ alloy है, एंड दिस alloy increases the melting point of the substance. Same way, Alnico and Fernico are the two alloys. Those are used for making temporary magnets. Alnico is made from aluminium, nickel, and cobalt. Similarly, Fernico is made from iron, nickel, and cobalt. Steel, very common alloy, which is used for making machines as well as utensils, etc. Instead of if you are making these things with the help of iron, so iron क्या हो सकता है, टूटने के चांसेस होते हैं, रस्टिंग के चांसेस होते हैं, बट
स्टील में टेंसाइल हो जाता है, स्ट्रांग होता है, एंड इट डज नॉट कोरोड और रस्ट इजीली, एंड इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, कार्बन एंड मैंगनीज. This is. Now, there are certain properties, those are different from alloy as well as the metals. What are those? ये क्या चेंज लाता है? सबसे पहले है, हमने देखा, हमने इसका यूज किया to prevent from the rusting or the corrosion. So yes, prevents rusting, prevent corrosion. One, it prevents the corrosion. Second, hardness, increases the hardness, increases the durability. Changes chemical properties. समटाइम्स जैसे यहाँ पे हम ब्रास के बारे में बात करते हैं, ब्रास येलोइश कलर का होता है, गोल्ड के जैसा शाइनी होता है, वेल्स कॉपर रेड ब्राउन है, जिंक का कलर सिल्वर है, और जब दोनों को मिलाते हैं तो एक अलग से मेटल प्रोड्यूस होता है. ब्रास जो कलर में भी डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज में, कॉपर गुड कंडक्टर है बट ब्रास इज नॉट अ गुड कंडक्टर, राइट. जिंक पुअर कंडक्टर है, दैट इज. सो इट चेंजेस द properties, chemical properties especially, right. Apart from this, so these are the properties we can say which is found. There are many more properties, those are found in the alloy which are not available in the metals there.